be here. Chemistry department is one department where I had earlier given one lecture. That was during the All India Teachers, Chemistry Teachers Association's conference. But I'm here now again. I'm really happy. During the coming 45 minutes or so, I'll be telling you something about the isotopes. I understand that many of the people here are research scholars and MSc students, right? So I'll go by the lowest common denominator in some cases, and I'll be some basics which will be very obvious to the faculty, but I'll still explain them for the benefit of the students. Isotope is something which not many people know about, even though I think in high school or intermediate, we learn what isotopes are. But very few of us know how powerful this method is. Yesterday I went to Allahabad to meet my PhD guide. He had been in Houston for the last 35 years or so. He was an expert in isotopes. I did my PhD under him. And yesterday I met him after 35 years, so we counted all that has happened during these 35 years in the field of isotope systematics particularly. You will be surprised to know that isotopes which can be said to be a gift from the chemist to the geologist, to the physicist, to the environmentalists and everybody. This is something which has given so many exciting things. People who are working, there are new fields which have come up, like people say nuclear chemistry. Now people talk about nuclear astrophysics. There is a whole book which was written by Jean Autrous, a French astrophysicist, which is about isotope astrophysics. Now, paleothermometry has come up as a completely new field, where based on the ratio of oxygen isotopes. For example, oxygen has three main stable isotopes: oxygen 16, 17, and 18. Their ratio gives you clue what the temperature in the past was. The ratio of neon isotopes, neon 20, neon 21, and neon 22. This ratio can tell you if you are getting some neon in a lunar sample or in a meteorite sample, based on the neon 20 by 22 and neon 21 by 22 ratio, you would be able to tell whether this neon has come from the sun. Not only that, you would be capable of telling whether this neon is coming from the solar corona, solar wind, or this neon is produced because of the nuclear reaction of the solar protons in the lunar material, lunar grain or lunar rock. For my PhD, I had worked on lunar samples, lunar rocks and lunar soil, and also on the meteorites. And that is what I had done this astrophysics studies. And later I switched over to carbon-14, another isotope, which is radioactive, and therefore we call it the radiocarbon. So in today's lecture, I'll be telling you about the stable isotopes like oxygen and carbon. I'll be telling you about the radioactive isotope and many of its applications like carbon-14. I'll also briefly mention about isotopes like beryllium-10, aluminium-26, which are radioactive with a half-life around 1 billion years, and they are wonderfully being used in nuclear astrophysics and also in earth sciences. Professor Roy would know about the application of beryllium-10 and these isotopes, for example, in the rheology. So, but I will start where Professor Vibhuti Rai and Professor Anil Mishra left off. This is something from the Aryabhatiya Golpa, which says, there is a show, I think many would find very difficult to read this show, so I would go for the English translation. जो रुके हुए या हिंदी में उसका करके बताएंगे, just like the station जो रुके हुए objects हैं, जैसे चट्टान है, पेड़ है, जब हम किसी गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो हमें लगता है कि ये उल्टी तरफ जा रहे हैं। ये जो रिलेटिविटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आर्यभट्ट ने आज से 476 AD, ऑलमोस्ट 1500 साल पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। हमारे पुराने वेदों में, हमारे ग्रंथों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन कहा जाता है, आई वोंट वाउच फॉर इट, लेकिन कहा जाता है कि इनमें से कई ऐसे आइडियाज़ थे जिनको फॉरेन के साइंटिस्ट ने दिया। मैं विज्ञान भारती से जुड़ा हुआ आप जानते हैं, तो हम लोग
इस बारे में भी बात करते हैं कि जो हमारी संपदा है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे मैं इस बात का बहुत प्रबल रूप से पक्षधर हूँ कि जो बातें सिद्ध नहीं की गई हैं हमें उनको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिन बातों को प्रमाणित किया जा चुका है उन बातों के बारे में हमें गर्व करना चाहिए, और यदि हम उसके आधार पर और आगे बढ़ सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो व्हाट वी शुड डू। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक बार पुणे में दो वहाँ के कॉलेज के अध्यापक थे, उन्हें किसी ने एक मंत्र दिया और उस मंत्र के आधार पर उन्हें लगा कि वो एक सेल बना सकते हैं जिसमें वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्हें लगा उसके लिए क्या सामान चाहिए होगा, तो उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा। उस मंत्र में लिखा हुआ था कि आप एक कोई घड़ा ले लीजिए मिट्टी का, उसमें कॉपर की तांबे की शीट को डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी शिखी ग्रीवा डाल दीजिए, और उसके बाद जब आप उसमें रिएक्शन होगा, जब जिंक पाउडर डालने के बाद दो इलेक्ट्रोड्स उसमें होंगे, उन दोनों के बीच में वोल्टेज जनरेट होगा, बिजली वही आप टाउन समय यूज की गई थी। उन्होंने कहा था मित्र वरु शक्ति, जो संस्कृत में जो शब्द जिसका उपयोग किया गया था। अब ये लोग परेशान हो गए कि शिखी ग्रीवा कहाँ से ले लें। ये लोग लोगों के पास गए, किसी के पास गए, बोले कि आप मुझे शिखी ग्रीवा दे दीजिए, मोर की गर्दन दे दीजिए थोड़ी सी। उन्होंने कहा मोर की गर्दन का तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा हमारे प्रयोग के लिए बहुत आवश्यक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं और उसमें हमें शिखी ग्रीवा को डालना होगा। तो उन्होंने कहा शिखी ग्रीवा का मतलब मोर इसकी गर्दन नहीं है, शिखी ग्रीवा का मतलब है कॉपर सल्फेट, क्योंकि वो रंग जो होता है वो कॉपर सल्फेट से मैच करता है। तो उसके लिए तो एक जो समस्या हमारे पुराने ग्रंथों को समझने में आज है वो ये है कि उस समय जिन टर्म्स का जिस शब्दावली का उपयोग किया गया था, आज हम उस शब्दावली को नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े चिंतक हैं, उन्होंने एक पुस्तक भी इस पर बहुत अच्छी लिखी है, सुरेश सोनी थी। और मैंने उनसे चर्चा की, मैंने कहा कि हर संस्था में नहीं तो कम से कम एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर संस्कृत के विद्वान भी हों, जो लोग वेदों को जानते हैं वो लोग भी हों, और जो आधुनिक विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, चाहे फिजिसिस्ट हों, केमिस्ट हों, मैथमेटिशियंस हों, या दूसरे जियोलॉजिस्ट हों, दूसरे साइंटिस्ट हों, ये सब मिलकर पुराने ग्रंथों में देखें, और अगर उसमें कुछ इस तरह की जानकारी है तो उसको आज के संदर्भ में उस प्रयोग को करके, उस एक्सपेरिमेंट को करके देखें, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पुष्प प्रमाण था, क्योंकि हम उसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं दे पाए हैं। जैसे कहा जाता है कि अगस्त संहिता में उसका वर्णन है, लेकिन जिन चीज़ों के प्रमाण हैं, जिन चीज़ों को सिद्ध किया जा चुका है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी में हो, हम जानते हैं हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के जो सोलर सिस्टम है, इसका कॉन्सेप्ट था, जीरो का कॉन्सेप्ट था, डेसिमल का कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी 5-6 साल पहले फिर से एक मैन्युस्क्रिप्ट की डेटिंग की गई थी रेडियो कार्बन के तरीके से, AMS से, और उससे पता चला कि शायद डेसिमल का कॉन्सेप्ट जितना हम समझते थे उससे भी 500 साल पुराना है। ये रेडियो कार्बन डेटिंग में बेस्ड है AMS के माध्यम से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी हमारे यहाँ थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ इस बहुत जो सही जानकारी थी, इस पर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिल गई हैं, और आज हमें ये नहीं पता कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात ठीक है। तो समय है शायद इनमें से बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहिए, वरना तो उसी तरह की बात होगी कि किसान के खेत में कद्दू थे और वो देख रहा था कि रोज़ उसके खेत में से कद्दू चोरी हो जाता है, वो बहुत परेशान हुआ। उसने अगले दिन अपने खेत में एक बोर्ड लगा दिया कि इन कद्दुओं में से एक कद्दू जो है वो जहरीला है। उसकी आशा तो ये थी कि अब इसके बाद कोई भी आदमी कोई कद्दू चुरा कर नहीं ले जाएगा, बिकॉज कौन सा कद्दू जहरीला है ये तो नहीं पता है। पर दो बहुत स्मार्ट थे, अगले दिन जब वो अपने खेत में गया तो उसको वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ मिला कि इस खेत में 2 कद्दू जहरीले हैं। तो वो किसान खुद भी अपने खेत का कद्दू नहीं खा सकता। तो कुछ इसी तरह की चीज़ हुई है कि जो बहुत सारी सही बातें हैं हमारे देश में जो विज्ञान में थी, उनमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिल गई हैं, और अब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ सच है और सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो मैंने इस नोट पर आरंभ किया है, लेकिन इसके बाद मैं अब आऊँगा अपने आइसोटोप वाले विषय पर, और उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि आइसोटोप्स का किस तरह से उपयोग होगा। लेकिन हम आइसोटोप्स के क्षेत्र में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा देश आइसोटोप्स में स्टडीज़ के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। और ये उसी तरह की बात है कि अब से 165 साल पहले चल रही प्रोफेसर या आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने हमारे देश में इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री का जो सूत्रपात किया था, वो हमारे देश में बहुत बड़ी चीज़ थी, और इसे अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
अंग्रेज इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि अगर किसी केमिकल की ज़रूरत हमारे देश में होती थी तो उसे इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया जाता था और मनमानी कीमत पर वो हम भारतीयों को बेचा करते थे। तो उनको कभी ये सूट नहीं किया कि हमारे देश में केमिकल्स का अपने आप उत्पादन होने लगे। लेकिन PCA turned out to be the man who industrial revolution एक तरह से उन्होंने किया केमिकल साइंसेस के क्षेत्र में। टू द एक्सटेंट कि मैनचेस्टर गार्डियन के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, he is also a real organizer and a real teacher। उन्होंने कहा, I heard a European saying that Mr. Gandhi had only been able to create 2 more such PC rays, he would have succeeded in getting Swaraj within this year। इतना प्रभाव PC रे का हमारे समाज पर, हमारे बौद्धिक लोगों पर, जो PC थे उन पर, अंग्रेजों पर था कि उनका मानना ये था कि अगर 2-3 और PC रे हो जाते तो हमारा देश शायद 1947 से बहुत पहले आज़ाद हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी मिलने से 3-4 साल पहले PC रे का निधन हो गया। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, एलन केमिस्ट, आप तो ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, इनको मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स कहा जाता था। और हेनरी एच आर्मस्ट्रांग एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने कहा था द वे इन व्हिच यू हैव ग्रेजुअली मेड योरसेल्फ अ मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द फैक्ट दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट दे एज अ क्लास are far from being the unstable bodies chemists had supposed is an important addition to our knowledge। Actually जो मर्क्यूरस नाइट्राइट को जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो बड़ा एक्सीडेंटल था, बहुत चांस था। वो जो रिएक्शन करना चाह रहे थे वो करना चाहते थे मर्क्यूरस नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट को बनाने के लिए, और उसमें उन्होंने देखा कि जो उनका जहाँ पर वो रिएक्शन कर रहे थे उसमें किनारे पे येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो जमा हो रहा था। और जब उन्होंने उसको टेस्ट किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो उन्हें पता चला कि मर्क्यूरियस नाइट्रेट था। So this was a great discovery which was made by everybody। In fact उसके कुछ साल बाद नेचर में 2 पेज का फ्रंट पेज आर्टिकल आया और उसमें इसकी तारीफ की गई थी। और रिसर्च की अगर हम बात करें आज के ज़माने के लिए, अगर कोई कहता है कि मेरे 158 पेपर्स हैं रिसर्च पेपर्स, जबकि जर्नल्स की संख्या उस समय के मुकाबले मुझे लगता है 10 से 20 गुनी इस समय कम से कम हो गई और शायद इससे ज़्यादा हो गई। लेकिन कुछ समय प्रोफेसर PC रे ने 158 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे। द पीक वाज समवेयर व्हेन ही वाज इन 40s, जिस साल में उन्होंने रिसर्च पब्लिकेशन किए। और वो ऐसा नहीं कि लोकल जर्नल्स में थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा लोकल जर्नल्स हमारे देश में तब थे नहीं। इन 158 रिसर्च पेपर्स में से अधिकतर इंटरनेशनल फॉरेन जर्नल्स थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल्स, एक फॉरेन जर्नल्स होते हैं, एक इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं। फॉरेन से छपने वाला हर जर्नल इंटरनेशनल जर्नल नहीं होता। रोमानिया से भी छपते हैं कुछ जर्नल्स जो इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन कुछ जर्नल्स हैं जो सब कुछ इंटरनेशनल। इनके पेपर्स 8 पेपर्स नेचर में प्रकाशित हुए थे, जर्नल केमिकल सोसाइटी में 65 प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा ज़ाइटफुल इनऑर्गेनिक केमी जो जर्मन है उसमें इनके पेपर्स पब्लिश हुए थे और 50 के करीब पेपर्स इनके भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। आई थिंक दिस 158 वाज अ रियल फीट जो आज भी बहुत लोग नहीं पब्लिश करते हैं। दूसरे इनके व्यक्तित्व का जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू था वो पहलू था इनकी राष्ट्रभक्ति। प्रोफेसर PC रे, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे ऐसे जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ बहुत उनका मेलजोल था। अब आप इसमें पहले वाले चित्र में देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ इनको, और इसी तरह से और बहुत सारे गुजरात में वो शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। गांधी जी ने एक संस्था को वहाँ पर स्थापित किया था, गुजरात विद्यापीठ, उसके कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ करते थे और उसका जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वो उसमें थे। यहाँ पर इनफैक्ट मैं तीसरे के बारे में स्टूडेंट को, लेकिन ये जो 22 से दूसरे हैं और जो 20 में है वो प्रोफेसर PC रे हैं और उसके बाद किनारे पर प्रोफेसर SN बोस है और इन पर मेघनाथ साहा है। 3 स्टॉलवर्ड्स भारतीय विज्ञान के और उस स्तर के भारतीय वैज्ञानिक उसके बाद CV रामन हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ी है। और मुझे लगता है कोई ऐसे वैज्ञानिक भारत में शायद नहीं हुए जिन्होंने इतनी छाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी हो। हिग्स बोसॉन के बारे में आपने सुना है, उसमें बोसॉन में जो BOS लिया गया है वो SN बोस के नाम से लिया गया है, क्योंकि उन्होंने पूरे पार्टिकल्स को फर्मियंस में और बोसॉन्स में विभाजित किया था उन्होंने। तो ये SN बोस वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के दोनों मेघनाथ साहा और SN बोस दोनों के दोनों स्टूडेंट्स से PC रे के, और कहा जाता है कि किसी
नेता की, अच्छे लीडर की जो हम को आंकते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम इस आधार पर करते हैं कि उन्होंने कितने नेता पैदा किए हैं, कितने फॉलोअर्स पैदा किए हैं, इससे नहीं, उन्होंने कितने नेता पैदा किए हैं। एंड पीसी वाज अ पर्सन हु प्रोड्यूस्ड साइंस लीडर्स लाइक मेघनाथ साहा एंड एस एन बोस। एस एन बोस के बचपन की कहानियाँ भी आपने बहुत सुनी होगी। 100 में से नंबर उनको 110 दिए थे, अध्यापक ने कहा था, स्टूडेंट सीम्स टू बी नोइंग मोर देन मी। गांधी जी ने आचार्य पीसी के बारे में कहा था कि जो लोग मेरी मेमोरी में सबसे आगे चमकते हैं वो डॉक्टर और अब जो सर पीसी हैं वो है। प्रोफेसर ने के बारे में उन्होंने कहा था कि पीसी वो व्यक्ति है जिनको 800 रुपये की सैलरी मिलती थी। उस 800 रुपये की सैलरी में से वो केवल 40 रुपये अपने पास रखते थे और बाकी वो बांट देते थे दूसरे पब्लिक पर्पसेस के लिए। ही इज नॉट डजंट गो टू गेट मैरिड। आचार्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन उनका सोच में राजनीति इस अर्थ में थी कि वो देश के स्वतंत्रता के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते थे। कहा जाता है कि अंग्रेज उनके प्रति हमेशा सशंक रहते थे कि जो रिवोल्यूशनरी जो एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उपयोग एक्सप्लोसिव्स की तरह होता है, इनके लाइन में बनाते थे, तो उनमें से अंग्रेजों को हमेशा ये शक रहा कि क्रांतिकारियों की मदद करते थे। सो दे ऑलवेज सेड दैट बी very careful about this overeating sage कि पता नहीं क्या पूरा बात करेंगे, but he himself was not active in politics. उन्होंने किताब लिखी थी हिंदू केमिस्ट्री के बारे में, और हिंदू शब्द का मतलब इंडियन केमिस्ट्री था, लेकिन जिस समय की बात को कर रहे थे उस समय हिंदू ही क्योंकि थे, इसलिए उन्होंने उसको हिंदू केमिस्ट्री कहा। सर थॉमस हॉप, इन्होंने नेचर में अपने 2 पेज के फ्रंट आर्टिकल में एक में लिखा था, सर प्रफुल्ल चंद्र, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द प्रेसिडेंसी कॉलेज, is well known to chemists in this country as the author, either alone or in collaboration with his pupils, of more than 100 papers chiefly on the inorganic and organic nitrites, published in the Transaction of the Chemical Society, in continental journals, or owned in the journals of Asiatic Society of Bengal. Hope also mentions that Ray had contributed as the founder of the successful chemical industry, which proved of considerable service to the government during the war, when the supply of Western chemicals and drugs were seriously interfered with. तो इनका कंट्रीब्यूशन केमिकल इंडस्ट्री, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो इनकी कंपनी की आज भी वो है, वो जिंदा है, उनके नाम से कंपनी है। ऐसे इसी डे के जन्मदिवस के अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा जन्मदिवस 1 अगस्त होता है। एटम कि हम लोग बात कर रहे हैं, एटम हम अभी भी नहीं समझते, पता नहीं कितनी स्टेजेस से हम गुजरे हैं। एटम के बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि एक किसी को नोबेल प्राइज एटम के एक कॉन्सेप्ट के मिला है, उनके बेटे को उससे दूसरा कॉन्सेप्ट देने के लिए मिला है, और उनके बेटे को उससे भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने के लिए मिला है। बट द फैक्ट इज आवर थिंकिंग इज कॉन्स्टेंटली इन इवोल्यूशन। बहुत सिंपल टर्म्स में कहें तो द स्टूडेंट्स बेनिफिट, एटम को हम कहेंगे कि एटम में न्यूट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में और प्रोटॉन्स होंगे। Strictly speaking, this is not true. हम उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को हम कह देते हैं कि उसके बाहर ऑर्बिट में वो बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम केवल प्रोबेबिलिटी की या संभावना या प्रायिकता के टर्म्स में बात कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितनी है। दैट्स ऑल वी कैन से। हम ये नहीं कह सकते वो कहाँ पर है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ये अनसर्टेनिटी हमेशा उसमें रहेगी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उस तत्व को निश्चित करते हैं, उस एलिमेंट को निश्चित करते हैं। अगर कार्बन के अगर हम एटम की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे, जो मोस्ट कॉमन कार्बन का आइसोटोप है, 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, और उसका एटॉमिक वेट होगा 12, राइट। लेकिन ऐसे भी उसके दूसरे एटम हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी एटॉमिक वेट डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट वही है, और ऐसे चीज़ों को हम उस एटम का आइसोटोप कहते हैं। देयर आर समथिंग लाइक 300 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, और अगर हम आर्टिफिशियल आइसोटोप्स को भी इंक्लूड कर लें तो 1200 आइसोटोप्स आते हैं। तो बाकी के जो आइसोटोप्स हैं उनको एक्सीलरेटर्स में बनाया जाता है, उनके हाफ लाइफ बहुत कम है। यहाँ तक कि कार्बन 14, आप लोग बीबर साहनी इंस्टीट्यूट के पड़ोसी हैं, तो रेडियो कार्बन का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे। तो रेडियो कार्बन जो है उसके भी आइसोटोप्स की संख्या 15 है, लेकिन उनमें से 3 हैं जो काफ़ी उनकी एबंडेंस है, उनकी हाफ लाइफ भी रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल 11 जो कार्बन
12 और 13 है, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। कार्बन 14 जो है ये स्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है और इसका बहुत एप्लीकेशन है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। नाउ दिस इज सपोज टू बी अ पॉपुलर लेक्चर। मुझे आज तक समझ में नहीं आया पॉपुलर लेक्चर किसे कहते हैं, जो पॉपुलर लेक्चर पॉपुलर नेटवर्क। लेकिन दूसरी बात यह है पॉपुलर लेक्चर्स की जो मेरी डेफिनेशन है, तो मैं आपको इस तरह से चीज़ों को बताऊंगा एज दे आर वेरी सिंपल, एक्चुअली दे आर नॉट। हर एक के पीछे बहुत इंचिकेट प्रोसेस होता है, लेकिन उन इंचिकेसीज में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं बहुत सिंपल वे में प्रॉब्लम अब उसका क्या रिजल्ट है वो आपको बताऊंगा, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट हाउ पावरफुल दिस टेक्निक ऑफ आइसोटोप्स इज। आइसोटोपिक रेशियोज की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में हिंट किया था कि ऑक्सीजन के अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 18 टू ऑक्सीजन 16, ये हमें अगर समुद्र में कोई डिपॉजिट हो रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें अगर हम एक 18/16 रेशियो को मेजर करते हैं और वहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जैसे कोरल, जिसमें हमें पता है कि उसका जी एंड पुराना है और जी एंड नया है, तो उसकी कोरल की हम पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे और उसको अलॉन्ग द हाइट हम उसमें ऑक्सीजन 18/16 का रेशियो मेजर करेंगे और उनमें जो चेंजेस होंगे उसको कैलिब्रेट करके हम जो सीज पे जो टेम्परेचर में वेरिएशन पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स में हुए हैं, उनको हम पता लगा सकते हैं। अब उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल ये है कि जब समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है तो उसमें क्या होगा, किनेटिक फ्लक्चुएशन होगा। जो ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप है वो कम इवेपोरेट होगा, ऑक्सीजन 17 का उससे थोड़ा सा ज़्यादा इवेपोरेट होगा और ऑक्सीजन 16 का उससे थोड़ा सा ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो लेफ्ट ओवर आइसोटोप्स हैं दे विल गेट एनरिच्ड इन ऑक्सीजन 18। देयरफॉर हाई टेम्परेचर विल बी इंडिकेटेड बाय हायर ऑक्सीजन 18 टू ऑक्सीजन 16 रेशियो। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है एंड दिस हैज बीन सच अ पावरफुल टेक्निक इन पैलियोथर्मोमेट्री, इसको जियोसाइंसेस में कहा जाता है, कि बहुत सारे समुद्रों में कोरल्स के और दूसरे डिपॉजिट्स का एनालिसिस करके ऑक्सीजन का लोगों ने ये लगा लिया है कि पिछले 1 लाख साल में टेम्परेचर में किस तरह से हमारी पृथ्वी का परिवर्तन हुआ, जस्ट बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रिंसिपल। कार्बन के बारे में आपको मैंने बताया कि कार्बन 12 और 13 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। और इसका मतलब क्या हुआ मैं थोड़ा बाद में इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक सवाल यह आता है कि आइसोटोप्स की हमने बात की, हमने कहा उनमें वेरिएशन होता है, हम इनको मेजर कैसे करते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म मैस स्पेक्ट्रोमीटर? एक्चुअली मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज समथिंग व्हिच यू कुड से दैट अगेन इज अ गिफ्ट ऑफ केमिस्ट टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड टू द वर्ल्ड ऑफ जियोसाइंसेस। एस्टन ने इस पर बहुत काम किया था, मैं उसका ओरिजिनल मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपको दिखाऊंगा। और आप लोग कभी अगर बीबल सामने इंस्टीट्यूट पे जाके हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स को देखने का मौका मिला, यू विल बी सरप्राइज्ड। अर्लियर मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू बी वेरी क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन आज के मैस स्पेक्ट्रोमीटर इतने सोफिस्टिकेटेड हैं एंड फॉर कमर्शियल रीजंस वो इस तरह से ब्लैक बॉक्स की तरह बना दिए गए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या है। तो उसका रफ स्ट्रक्चर आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या किया जाता है, उसमें हम आइसोटोप्स का मेजरमेंट करते हैं। इतना ऑक्सीजन 18 है, इतना ऑक्सीजन 16 है या इतना ऑक्सीजन 17 है, उनका तीनों का मेजरमेंट करते हैं, उनको आपस में डिवाइड करके उनका रेशियो निकाल देते हैं। दूसरी तरकीब क्या है कि डायरेक्ट आइसोटोप का मेजरमेंट हम न करें, हम मेजरमेंट करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की रेडियो एक्टिविटी का। उसका प्रिंसिपल क्या है? आप लोगों ने शायद बीएससी में जाते थे, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t इक्वेशन पढ़ी है। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं पर रखेंगे उतना ज़्यादा उसमें से रेडियो एक्टिव डीकेज होंगे। तो अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है या बीटा डीके हो रहा है या कोई और डीके हो रहा है तो उतना ज़्यादा होगा जितना अगर 1 किलो आप यहाँ पर रखेंगे, उससे अगर n डीके होते हैं तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 किलो रखने पर 2 डीकेज होंगे, 3 किलो रखने पर 3 डीकेज होंगे। सो द नंबर ऑफ डीकेज पर मिनट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये उसी का प्रिंसिपल है। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर, नमूने के अंदर आपको कितना कोई रेडियोएक्टिव
आइसोटोप है आपको पता लगाना है, आप उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद उसको एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर या लिक्विड सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके अंदर रख दीजिए। जब उसमें डीके होंगे तो जितनी बार डीके होंगे बीटा पार्टिकल निकलेगा, वो एक लिक्विड में से होके जाएगा जिसके अंदर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है और वो चमक उसमें पैदा होगी। आप यहाँ पर फोटो सेंसर ट्यूब्स रखेंगे और वो उनको सेंस करेगी। एवरी टाइम बीटा डीके हैपेंस 1 काउंट विल बी रिकॉर्डेड। इफेक्टिवली आपको पता चल गया कितने डीके हो रहे हैं। एट द मोमेंट यू नो इतने डीके पर मिनट हो रहे हैं, आपको पता चल गया कि कितने बड़े अमाउंट में इसके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है। ये सेकंड इसका प्रिंसिपल है। दिस विल बी द बेसिस ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। तीसरी ALS बेस्ड टेक्निक है, मैं उसको डिटेल में ले जाऊंगा। You see at the bottom, second from the left is the Astron's original mass spectrometer 1990, 100 साल से ज़्यादा इसको हो गया है। और अब आप जब जाकर किसी आज के mass spectrometer को देखेंगे, this has become such a sophisticated thing with lot of electronics, lot of material science involved there. ये पुराने ज़माने में स्पेक्ट्रोग्राफ किया जाता था, डिजिटल उस समय इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। इवन चार्ट रिकॉर्डर शुरू में नहीं हुआ करते थे। इनको फोटोग्राफिक प्लेट टाइप चीज़ पर रिकॉर्ड किया जाता था। नियॉन 20 एंड नियॉन 22 ये वेरिएशन इनका अलग अलग होता था मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अलग अलग हो जाते थे। स्ट्रक्चर मैस स्पेक्ट्रोमीटर कोई भी हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। शुरू में एक सोर्स होगा, वहाँ पर हम आयोनाइजेशन करेंगे। मोस्ट कॉमन इज कि हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पे एक फिलामेंट है। मैं आपको सिंपलेस्ट को बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट सोर्स। यहाँ पर फिलामेंट में हमसे 2 या 3 एम्पीयर माना करंट फ्लो करते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो जो भी गैस यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और जब वो आयोनाइज होगी तो पॉजिटिव आयंस बनेंगे या नेगेटिव आयंस। हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया तो पॉजिटिव आयन बनेगा, राइट। नेगेटिव चार्ज निकल गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में से होकर गुजारते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड में से वो होकर जाता है तो उनमें डिविएशन होता है। हल्का पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, भारी पार्टिकल सबसे कम डिविएट होता है। तो जो भारी पार्टिकल है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए कनेक्टर रखेंगे। जो हल्का पार्टिकल है यहाँ पे रखेंगे, हल्का पार्टिकल यहाँ, मीडियम पार्टिकल यहाँ, और जो सबसे भारी पार्टिकल है वो यहाँ जाएगा। तो हम उसको इलेक्ट्रॉन करंट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस अमाउंट में वो आयंस आ रहे हैं। तो दिस इज द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिक प्रिंसिपल। मैं इन सब डिटेल्स में स्किप कर दूंगा। बेसिकली बस इतना आपको बता दूं कि जब आयन बनने के बाद वो जो हमारा फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन में 8, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स 16 के अंदर और 8 प्रोटॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो जब मैग्नेटिक फील्ड में से हमने वेलोसिटी देके उसको गुजारा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको मोड़ देगा और वो अलग अलग पाथ्स जो है वो ले लेंगे। ये पार्ट थोड़ा फिजिक्स था, मुझे आई हैव टू प्रूव दैट आई एम बेसिकली अ फिजिसिस्ट, राइट। अब थोड़ा सा मैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में आऊँगा। ये सिंथलेशन काउंटर है, मैं डिटेल्स के इसके लिए नहीं जाऊँगा। बाहर से ये ऐसा दिखाई देता है, अंदर से ये ऐसा होता है। यहाँ पर एक लिक्विड की फॉर्म में हम रेडियोएक्टिव मटेरियल को रख देते हैं, उससे बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और उस बीटा पार्टिकल्स के निकलने के प्रोसेस में एक चमक पैदा होती है। उस चमक को हम डिटेक्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है एक बीटा डी हुआ। जितने ज़्यादा बीटा डी होंगे उतना ज़्यादा बीटा सोर्स इस हमारे सामने के अंदर है। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन आइसोटोप के बारे में। इसी तरह कार्बन आइसोटोप्स भी मैंने आपको कहा, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इनमें से कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं। कार्बन 12 और कार्बन 13 का रेशियो क्या है? ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है और आपको आश्चर्य होगा कि अगर हमें कहीं पर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है किसी पुरानी चट्टान में और हम पता लगाना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सोर्स का है यानी किसी लिविंग मटेरियल से आया है या ये इनऑर्गेनिक कार्बन है, तो हम उसमें कार्बन आइसोटोप्स का मेजर करते हैं और कार्बन 13 बाई कार्बन 12 के रेशियो के आधार पर हम निर्णय करते हैं ये चीज़ जो है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। और ये आप देखिए कि प्लांट्स जो अलग अलग तरह के होते हैं,
उनके अंदर भी कार्बन 13 बाई कार्बन 12 का रेशियो अलग अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। जो अपना फूड बनाते हैं वो अलग अलग तरह से बनाते हैं। जो 3 कार्बन आइसोटोप्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं वो C3 है, इसी तरह से C4 है। कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट्स में होते हैं, कैम प्लांट्स, उनमें अलग तरह से होता है। तो उन सब के अंदर कार्बन 13 बाई कार्बन 12 का रेशियो डिफरेंट होता है। व्हाट दिस मीन्स, आप लुक एट द इंडिकेशन। हम किसी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदते हैं, पिछले कई मीटर्स के हम सैंपल के नमूने निकालते हैं, उन सारे सैंपल्स में नीचे से लेकर ऊपर तक हम कार्बन 13 बाई कार्बन 12 का मेजरमेंट करते हैं, और उसके आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि किस समय किस तरह की वेजिटेशन होती है। क्या उस समय लैंड वेजिटेशन ज़्यादा होती थी तो कार्बन 13 बाई 12 डिफरेंट होगा। वहाँ पर अगर एक्वेटिक वेजिटेशन होती थी तो कार्बन 13 बाई कार्बन 12 का रेशियो अलग होगा। अगर वहाँ पर गैस हमें मिली है मीथेन और वो बैक्टीरिया की वजह से है तो उसका कार्बन 13 कार्बन 12 का रेशियो वो बहुत लो होगा। तो कार्बन 13 बाई कार्बन 12 के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं। इवन जो मार्स से जो एक चट्टान गिरी थी पृथ्वी पर, जब नाइट, आपको याद होगा बिल क्लिंटन जो है पूरे उसमें छा गए थे उस समय फॉर डिफरेंट रीजन। उन्होंने बताया कि इसके अंदर शायद एक बैक्टीरिया की एविडेंस है। यू रिमेंबर समथिंग अराउंड 1996-97, आप लोग बहुत छोटे रहे बट फैकल्टी माइट रिमेंबर। तो उसको बाद में जो डिस्प्यूट किया गया था कि ये एक्चुअली मार्स से वो मीटरराइट था, और उसमें ये लिविंग बैक्टीरिया नहीं है। ये एक एविडेंस जो उसके अगेंस्ट दी गई थी वो उसके कार्बन आइसोटोपिक रेशियो की बेसिस पे। ALD 7543 यस 760 कई सारे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है। एक अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, मैंने कहा कि यूनिवर्स की बात की, तो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप इसमें देख रहे हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि जो हाइट है, कि पीक्स की जो हाइट है चार्ट रिकॉर्डर से, ये बहुत पुराना पेपर है। रेनॉल्ड्स एक बर्कले में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक मीटोराइट की स्टडी की जिसका नाम था रिचर्ड। मीटोराइट, यू अंडरस्टैंड, दीज आर द सॉलिड बॉडीज दैट फॉल फ्रॉम द समवेयर इन द स्पेस। ये एस्ट्रॉइडल बेल्ट से भी हो सकती हैं, मंगल से भी आई हुई चट्टान हो सकती है, मून से आई हुई चट्टान भी हो सकती है। इनके अंदर जब उन्होंने ज़ीनॉन नाम की इनर्ट गैस का मेजरमेंट किया तो उनको पीक्स जो मिली, एबंडेंस जो मिली इन डिफरेंट आइसोटोप्स की, वो इतने 9 आइसोटोप्स होते हैं। तो दाएं में 124 और 126 है, 124 होता है, 126 होता है, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, इतने इसके आइसोटोप्स होते हैं। उनका ये सब इंटरप्ले है। तो आप एक चीज़ देखिए, जितने इसमें एबंडेंस है वो ये लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक एबंडेंस है। ज़ीनॉन का जो एबंडेंस है, एटमॉस्फेयर का सैंपल होता तो यहीं तक होना था, वहीं तक है, 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 वहीं तक। केवल एक केस में, आयोडीन 129 के केस में इसकी एबंडेंस जो है वो जो नॉर्मल एबंडेंस है उससे इतनी ज़्यादा है। हाउ टू एक्सप्लेन दैट? इसके बाद उन्होंने दूसरे जो मीटोराइट से उनमें भी मेजरमेंट किया। इन ऑल ऑफ देम दे फाउंड एक्सेस ऑफ ज़ीनॉन 129। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आपने आयोडीन 129 आइसोटोप सुना है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और ये डीके होता है इसमें ज़ीनॉन 129। अच्छा, क्या सिग्निफिकेंस है ज़ीनॉन की? ज़ीनॉन की सिग्निफिकेंस ये है, अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो देयर इज सो मच ऑफ नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, वही मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर भी रहेगी। तो अगर छोटा सा उसमें चेंज हुआ तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये जो नोबल गैसेस या इनर गैसेस हैं, इन गैसेस की खूबी ये है कि इनका बैकग्राउंड जो है नहीं के बराबर है, और अगर है भी तो हमें उसके बारे में पता है, बहुत सही पता है। तो ये जो एक्सेस ज़ीनॉन 129 है कहाँ से आ सकती है? इसका जब आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जब सोलर नेबुला के अंदर सॉलिड बॉडीज बन रही थी, आज से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब साल के पहले, जब सोलर जो क्लाउड था जिसके अंदर सेंटर में सन और बाकी चारों तरफ उसके प्लैनेट्स बने, तो जब ये प्लैनेट्स और दूसरी सॉलिड बॉडीज बन रहे थे, उस समय जो आयोडीन वहाँ पर थी
वो आयोडीन 129 इन सॉलिड बॉडीज के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो गई। लेकिन ये प्रोसेस फास्ट था, और जब फास्ट कहते हैं उसका मतलब है कुछ मिलियन ईयर्स। और ये कैसे पता चला? ये कैसे पता इसलिए चला कि ये जो एक्सेस जीनॉन है ये एट्रीब्यूट की गई आयोडीन 129 को। उनका कहना था कि आयोडीन भी यूनिफॉर्मली पूरे इसमें होमोजेनियसली चली गई क्लाउड के अंदर। जब सॉलिड बॉडी बनी तो उसके अंदर जो जरा बहुत जीनॉन 129 की बॉडी आ गई, लेकिन उसमें आयोडीन थी तो थोड़ी सी आयोडीन 129 की आ गई। आयोडीन 129 की हाफ लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन ईयर्स। तो वो आई तो अंदर आयोडीन की तरह, तो जीनॉन अपने ओरिजिनल फॉर्म में 129 में रही। लेकिन समय बीतने के साथ साथ में ये आयोडीन 129 जीनॉन 129 में डीके हो गए। तो उसके बाद अब जब हम उस सैंपल को मेजर करते हैं तो वो आयोडीन 129, so this the origin of this xenon 129 is actually iodine 129। और इसका मतलब ये था कि उस नेबुला से जो सॉलिड बॉडी बनी, उस सॉलिड बॉडी को बनने में डेफिनेटली केवल कुछ मिलियन ईयर्स लगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा समय लगा होता तो आयोडीन 129 जीनॉन 129 में चेंज हो गई होती, डीके हो गई होती, वो पूरे नेबुला में फैल गई होती और वो यूनिफॉर्मली सब जगह होती। ये एक्सेस ऑफ 129 नहीं करता। दिस इज वन थिंग which made John Rawls a very famous scientist। ये हमने 11 में दिया था और मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और आई विल टेल यू इज, अगर हम नियॉन 20/22 को वाई एक्सिस में प्लॉट करें किसी भी सैंपल में, माना मून के सैंपल में, लूनर सॉइल में, और नियॉन 21/22 को हम यहाँ पे प्लॉट करें, तो ये जो पॉइंट्स प्लॉट होंगे आप देखेंगे जो सोलर विंड से आई हुई नियॉन जिस ग्रीन में ज़्यादा होगी वो सैंपल यहाँ पे फॉल करेगा, जिस पे सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल से आई हुई नियॉन होगी वो वहाँ पे फॉल करेगा, और जिसमें इनमें से कुछ नहीं होगा, केवल गैलेक्टिक कॉस्मिक रे के रिएक्शन से बनी हुई नियॉन होगी, वो पॉइंट यहाँ पे फॉल करेगा। और इसके बेसिस पर इन 1980s वी वर एबल टू प्रूव कि मून की सरफेस पर जो ग्रेन्स हैं और जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो नियॉन प्रेजेंट है वो सन से सोलर विंड की फॉर्म में भी आती है, सोलर फ्लेयर की फॉर्म में भी आती है, और सोलर प्रोटॉन्स के न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से भी होती है, और जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज है बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी की, उनकी वजह से भी वहाँ पर बनती है। इनिशियली देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड अनदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी दे हैड डिफरेंस, बट 1983 की जो कॉस्मिक रे कॉन्फ्रेंस हुई उसको उन दोनों लोगों ने भी अटेंड किया, मैंने भी अपनी थीसिस तक रोक के रखी, और फाइनली फिर ये प्रूव हुआ कि नहीं, उन्होंने एडमिट किया, एक ने अपना पेपर विड्रॉ कर दिया और दूसरे ने अपने एरर मार्क्स इतने बढ़ा दिए कि हमारी वैल्यू और उनकी वैल्यू जो है वो कैरी कर गई। सो आफ्टर दैट आई कुड पीसफुली राइट माय थीसिस। तो दिस वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बेस्ड अगेन ऑन नियॉन आइसोटोप्स। सो इवन टुडे इफ समबडी brings a sample from Mars और अभी तक तो आया नहीं, लेकिन आने वाले हैं, और मून से, तो हम उसमें इन आइसोटोप्स की स्टडी इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि इसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट मैं आऊँगा रेडियो कार्बन पे। नेक्स्ट डोर है, आई वुड रिकमेंड कि आप में से जिसको जब समय थोड़ा सा मिले इज गो एंड विजिट द रेडियो कार्बन लैब एंड ऑल्सो द मास स्पेक्ट्रोमेट्री लैब्स एट लैब। दिस इज अ मैन, आई डिड माय degrees, I got my degrees in physics, but I can say that I lived off the work of a chemist. My job was can be attributed to a chemist. इनका नाम था विजर्ड एसडीबी, नोबेल लॉरिएट। इन्हें अपने रेडियो कार्बन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था in 1960। और जो कमिटी ने कहा था that something really great, they said Seldom has a single discovery in chemistry had such an impact on the thinking in so many fields of human endeavor. Seldom has a single discovery generated such wide public interest. Even Libby's father, he came to Libby and he said कि मेरे पास एक अपने घर का जो है मेरे 150 साल पुरानी एक कोई ऑब्जेक्ट है, जरा बता दो ये मेरे ग्रैंडफादर का है या मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का है। तो लिबी ने कहा कि भाई इतना यंग सैंपल है, इसकी रेडियो कार्बन से डेटिंग नहीं हो सकती, और उसके लिए हमें जो सैंपल है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। 1980s में एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की टेक्निक आ गई, और उस टेक्निक से अब जो हम लोग कन्वेंशनल डेटिंग करते हैं हमारे लीबर इंस्टीट्यूट में, उसमें हमें कई ग्राम सैंपल चाहिए होता है। हमें
अगर चारकोल की डेटिंग करनी है, लकड़ी की सैंपल की डेटिंग करनी है, तो हमें कई ग्राम सैंपल चाहिए ताकि उसमें से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन हमें मिल जाए, जिसको हम काउंटिंग से काफ़ी काउंट कर सकें। लेकिन एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर से इवन विद if you have just with 100 milligrams of sample, you can find the date. And this is a revolution which occurred sometime in 1980. और ये हो जाने के बाद there was a revolution in the field of radiocarbon dating, and I'll tell you one or two results here which wouldn't have been possible without the accelerator and spectrometers. रेडियोकार्बन कहाँ से आता है, कहाँ मिलता है, ये बेसिक क्यूरियोसिटीज हैं। अगर हम किसी पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधे के अंदर भी हमें रेडियोकार्बन मिलेगा। हम किसी एनिमल को देखें, उसकी बोन में, उसके स्किन में हमें रेडियोकार्बन मिलेगा। अगर हम समुद्र में चले जाएं तो वहाँ पर फोरामिनिफेरा होंगे, वहाँ पे दूसरे कुछ कोरल होंगे, उनके अंदर भी हमें रेडियोकार्बन मिलेगा। लेकिन इनके अंदर रेडियोकार्बन आया कहाँ से? इनके अंदर रेडियोकार्बन इस तरह से आया क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडियोकार्बन है, राइट? जब रेडियोकार्बन अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तो और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रेडियोकार्बन भी उस प्लांट के अंदर चला गया, राइट? जो उसका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कार्बन होगा, ग्लूकोज अगर बनेगा, जो बनेगा उसके अंदर कार्बन हो गया। उस कार्बन का एक छोटा सा फ्रैक्शन, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, समथिंग लाइक 10 to the power -15, then 10 to the power 15 एटम्स में से करीब एक एटम कार्बन 14 का होगा और वो उसके अंदर होगा। और जब उस पेड़ पौधे की डेथ हो जाएगी तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में रेडियोकार्बन आ गया। अब आप कहेंगे कि जानवरों के अंदर ये रेडियोकार्बन कहाँ से आ गया? जानवरों के अंदर कैसे आएगा? जोर से बोलिए। जब वो उस पेड़ पौधे को खाएंगे, लेकिन जो जानवर जो है पेड़ पौधे नहीं खाते, जो कार्निवोर्स हैं, उनके यहाँ कैसे आएगा? उनके बॉडी में कैसे रेडियोकार्बन आएगा? जब वो हर्बीवोर्स को खाएंगे और उनको जब हम खाते हैं दोनों को, तो हमारे शरीर के अंदर भी रेडियोकार्बन आ गया। एंड यू नो दिस इज द बेसिस। आपने पढ़ा होगा कि रूप कुंड के पास में बहुत सारी स्केलेटन्स मिले थे, राइट? पहाड़ों में, हिमालय में, उत्तराखंड से ऊपर जाने पर रूप कुंड के पास में जो ह्यूमन स्केलेटन्स कुछ मिले थे, उनके अंदर बोन्स जो थी, उन बोन्स की रेडियोकार्बन डेटिंग करके हमें ये पता चला कि वो जो लोग थे वो किस किस समय को बिलोंग करते थे। और ये पता चला, डॉक्टर अमीन की हमारे इंस्टीट्यूट में है और डॉक्टर राय उन्होंने इसका पता लगाया। ये 3 अलग अलग एरिया से आए हुए लोग थे, क्योंकि इनके अंदर जो एज थी वो अलग अलग थी। तो इस तरह तक की चीज़ें रेडियोकार्बन डेटिंग के आधार पर पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें रेडियोकार्बन एनिमल्स में मिल जाता है, प्लांट्स में मिल जाता है, ह्यूमन बींग्स में मिल जाता है, पत्ती हो चाहे पेड़ हो। और जब ये पेड़ पत्ती जमीन के नीचे दब जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो ये क्या बन जाएगा? चारकोल। और जब ये चारकोल बन जाएगा तो हम चारकोल की डेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब सी दिस इज सो इजी जनरली करना। मैंने आपको ये बता दिया कि एटमॉस्फेयर में रेडियोकार्बन होता है, इसलिए पेड़ पौधों में और हमारे अंदर आ गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड हैव बीन एटमॉस्फेयर में रेडियोकार्बन कहाँ से आया, राइट? एटमॉस्फेयर में कहाँ से आएगा? रेडियोकार्बन की हाफ लाइफ होती है 5750 ईयर्स, राइट? अगर ये दूर किसी गैलेक्सी से आता होता तो आते आते ही अब तक डीके हो गया होता, इसमें नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कहीं प्रोडक्शन हो रहा है। लोगों ने देखा कि जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं, अच्छा एक एक्सीडेंट और हुआ। अगेन केमिस्ट वर्किंग इन लेबोरेटरी, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक अमोनियम नाइट्रेट का जो कैन था उसको एक कोने में रख दिया लैब के, जहाँ पास में एक सोर्स था न्यूट्रॉन्स का। फाइनली लोगों ने उनसे कहा कि तुम इसको या तो उठा के बाहर ले जाओ या हम इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो फाइनली दे टुक इट। लेकिन जब उन्होंने उसमें मेजरमेंट किया तो उस अमोनियम नाइट्रेट के कैन के अंदर मुझे रेडियोकार्बन मिला। कहाँ से उसमें रेडियोकार्बन आएगा अमोनियम नाइट्रेट के अंदर? सरप्राइज। लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों ने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि जब हम न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं नाइट्रोजन पे तो क्या बनता है? रेडियोकार्बन। न्यूट्रॉन जब N14 के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके में बनेगा एक रेडियोकार्बन का एटम C14 बनेगा।
तो उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली दिस मस्ट बी हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। जो कॉस्मिक रेज आती हैं, लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कॉस्मिक रेज आर कमिंग फ्रॉम फार अवे गैलेक्सीज, वहाँ से आने में उन्हें पता नहीं कितने लाख साल लगते हैं, तो उनमें तो एक भी एटम रेडियो कार्बन का हो नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। वो प्रोटॉन्स, एनर्जेटिक प्रोटॉन एटमॉस्फेरिक जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। दीज न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन, और जब ये स्लो डाउन हो जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 14 के साथ, ऑक्सीजन 17 के साथ और दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन में ये न्यूट्रॉन्स जो रिएक्शन करके कार्बन 14 बनाते हैं। वो कार्बन 14 फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के थ्रू पेड़ पौधों के अंदर और फिर एनिमल्स में या हमारे अंदर, और या फिर पेड़ पौधों के थ्रू मिट्टी के थ्रू नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, और समुद्र में जाने के बाद कि वहाँ जो कोरल ग्रो हो रहा है उसके अंदर, या जो कैल्शियम कार्बोनेट या दूसरी ग्रोथ हो रही है, इवन जो स्केलेटन्स वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स स्केलेटन बनाते जाते हैं जैसे फरम वगैरह, उनके अंदर भी रेडियो कार्बन आ जाता है, उनकी भी रेडियो कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज अ न्यूट्रॉन, 99% production of radiocarbon is through this reaction. It reacts with 7 and 14. इसका मतलब तो आप समझते ही हैं, 7 इसके न्यूट्रॉन्स हैं, 7 इनके अंदर प्रोटॉन्स हैं, और N14 का एटम है, कार्बन 14 बनाता है, ये निकलता है, ये आगे चलते रिएक्शन करता है। अब सवाल आया कि हम इसका यूज रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए कैसे करते हैं। Am I going too fast? मतलब क्लियर हो रहा है ना? ये बाद में पता चलेगा जब आप लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल नहीं पूछने का मतलब कुछ समझ नहीं आया और सवाल पूछेंगे तो पता चला कुछ समझ में आएगा, देर से भी सुनिएगा। तो यहाँ आप देखिए, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। आजकल आम बहुत दिखाई दे रहे हैं ना मार्केट में, दशहरी भी और चौसा भी और ये सब भी। आप ये मान के चलिए कि 16 आम जो हैं, ये 16 आम कच्चे हैं और आपने इनको रख दिया। आपको ये बताया गया कि हर एक दिन के बाद इनमें से आधे आम पक जाएंगे। तो एक दिन बाद क्या होगा? एक दिन बाद आधे आम कच्चे रह जाएंगे, आधे आम पक जाएंगे। अब देखिए ये है ना, एक दिन आप और वेट कीजिए तो इन 8 आमों में से भी आधे आम पक जाएंगे और आधे आम भी उनमें से बचेंगे जो कच्चे रह जाएंगे। एक दिन और बीतेगा तो इन 4 में से भी 2 आम पक जाएंगे और 2 आम कच्चे रह जाएंगे। एक दिन और बीतेगा, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। कार्बन 14 के लिए हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। 5730 साल के बाद जो कार्बन का अमाउंट रखा हुआ है वो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर अगले में आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 164, 120, 1/256, 1 and 512 and so on keep on going। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपको आम की एक ऐसी टोकरी दी गई जिस टोकरी के अंदर 16 आम हैं और 16 आम में से केवल 2 आम कच्चे हैं और 14 आम पके हुए हैं, तो यू कैन बैक कैलकुलेट कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पुराने आम। अगर ऐसे मिले जिसमें 4 आम कच्चे हैं और 12 आम पके हैं, यू कैन बैक कैलकुलेट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और आधे आम कच्चे हैं, आधे आम पके हैं, तो इसका मतलब 1 दिन हो गया। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में या प्लांट्स में आजकल कितना रेडियो कार्बन है। अगर हमें किसी पुराने सैंपल में उसका रेडियो कार्बन अमाउंट जो है वो आधा हो गया मिलता है, और अगर रेडियो कार्बन की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है, तो वो सैंपल जिसमें आधा हो गया रेडियो कार्बन उसकी लाइफ कितनी हुई? 5730 ईयर्स। अगर 11,500 साल उम्र होती तो 128 हो गया होता, अगर 23 साल उम्र होती तो वो 1/4 हो गया होता। So this is the basic principle of radiocarbon dating in the simple terms. I have made it look very simple, but measurement is a very lengthy process. आप लोग अगर लैब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। There are some corrections also to be employed. I will not go into them. अब मैं उनके applications पर ले जाऊँगा। Geological samples को study कर सकते हैं, biological samples को study कर सकते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक आजकल के भी जो सैंपल हैं जो एनिमल बोन हैं, ये सब हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, इनमें से कुछ हमारे पेपर्स की हैं, कुछ हमारे ग्रुप के पेपर्स हैं, कुछ दूसरे लोगों का वर्क भी है। ये हमारा जॉइंट वर्क था विदिन BSIP, हमारी लैब, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और गुजरात के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलकर
कच्छ में एक जगह है कानमेर। कानमेर में एक जगह पर जब खुदाई की गई, एक्सप्लोरेशन किया गया, एक माउंट जैसा है वहाँ पर, और उस माउंट के अंदर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर अन्न के दाने मिले, फूड ग्रेन्स मिले, उसमें जौ भी था, उसमें और दूसरी भी चीज़ें थी, राइस का भी था, ये सब भी था। तो उन्होंने उसमें क्या देखा, उन्होंने देखा कि रबी में कुछ फसल होती है, कुछ फसल खरीफ में होती है, कुछ विंटर में होती है, कुछ जाड़ों में होती है। वहाँ पर एक ही जगह के जब सैंपल स्टडी किए गए तो उसमें रबी की भी फसल थी, उसमें खरीफ की भी फसल थी। नाउ गुजरात इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट फॉर क्रॉप्स। खेती के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, पानी वहाँ नहीं होता, गर्मी वहाँ बहुत पड़ती है। तो अब ये हुआ कि वेन वाज दैट, कितने समय पहले रबी और खरीफ दोनों फसल वहाँ पर लेनी लोगों ने शुरू की। तो जब हमने इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की तो हमने उसमें क्या देखा, इतनी सारी तरह की चीज़ें उसमें मिली थी। रबी की यानी विंटर क्रॉप्स में जो है बाले है, ब्रेड व्हीट है, छोटा वाला जो गेहूँ होता है वो भी है, ज्वार है, ये सब सीजमें हैं, ये सब है मिली थी। फिर तरह तरह के तेल के भी उसमें बीज थी, ये सब चीज़ें मिली, खरीद की भी चीज़ें मिली। और ये जब सैंपल्स की हमने डेटिंग की तो हमें पता चला ये तो करीब 4000 साल का है। इसका मतलब इतने समय पहले वहाँ पर जो है ये दो फसलें निकाली जाती थी। दिस वॉज आइदर बिकॉज द एनवायरमेंट और क्लाइमेट एट दैट टाइम वाज डिफरेंट, और दे हैड गुड वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कि पानी की उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग का एप्लीकेशन था। ये स्टडी मैं इन्वॉल्व था इसमें, और वाइल्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर ठाकुर, वो इन्वॉल्व थे, और एनजीआरआई में एक साइंटिस्ट डॉक्टर पांडे वो इन्वॉल्व थे, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। यहाँ पर बहुत सारे, एक बिहारीगढ़ एक जगह है रुड़की के पास में, मैं रुड़की का प्रोडक्ट हूँ तो आई डिडंट माइंड गोइंग देयर, मैं वहाँ गया, मैं साइट पर भी गया था। तो वहाँ पर भी एक माउंट था, और वहाँ पर क्या क्या मिलते थे, कुछ बर्तनों के टुकड़े, कुछ वहाँ पर और दूसरे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली, वहाँ पर ईंट मिली, वहाँ पर चारकोल मिला। चारकोल हमारे मतलब की चीज़ थी, इसको हम रेडियो कार्बन से डेट कर सकते थे, तो हमने उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की। जो सैंपल वहाँ पर जैसे ये घड़े के टुकड़े थे कुछ वो थे, उनकी हमने थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड से अहमदाबाद TRL में जहाँ मैं पहले था वहाँ पर हमने डेटिंग की। वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स थे उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। उसके बाद कुल मिलाकर जो चीज़ कहानी जो बनी वो ये थी कि 2600 साल पहले अब से वहाँ पर वेट फेज थी, और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि उसके बाद 1500 से 1300 BC का जो पीरियड था उस पर साउथ को महसूस कमज़ोर हुआ था, ये भी हमें पता है। जिस तरह से यहाँ पर नीचे हमें एक जगह पे हमें लोगों के रहने के, इनहेबिट करने के एविडेंस मिली, उसके बाद ऊपर का जो माउंट था उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद 800 साल का गैप था, वो भी रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला। 800 साल के बाद फिर वहाँ पर इनहेबिटेशन की एविडेंस थी। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वहाँ पर कोई घटना ऐसी हुई जो हमने इंफर किया कि अर्थक्वेक की थी, अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर उस जगह पर लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद दोबारा वो वहाँ पे आकर बसे, उसके बाद फिर से अर्थक्वेक आया, सारी चीज़ें वहाँ कोलैप्स हो गई और लोग वहाँ छोड़ के चले गए। और अर्थक्वेक की एविडेंस आप भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगी, वहाँ पर बिल्कुल स्कार्प है। और अर्थक्वेक में क्या होता है कि ज़मीन खिसक भी जाती है तो वहाँ पे इस तरह से डिप्रेस हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है। तो वो आज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कुआं दिखाई देगा, जो कुआं ऊपर है और ज़मीन यहाँ पे है। आमतौर पे कुएं का टॉप और ज़मीन एक ही लेवल पर होते हैं, वहाँ कुआं 10 फीट करीब ऊपर, बाकी की ज़मीन से ऊपर ये कुआं ऊपर आते हैं। तो अर्थक्वेक वहाँ पे आए थे। ये गढ़वाल के साउथ में, हिमालय के साउथ में ये रीजन है, और यहाँ पर अर्थक्वेक की हिस्ट्री है। तो ये कंक्लूजन हम लोगों ने रेडियो कार्बन डेटिंग करके निकाला कि किस समय ये चेंज हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि कौन से समय में कौन लोग थे, कौन सा कल्चर था, किस तरह से चेंज हुए, किस टाइम पे पता चला। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक बार लिपि वाज अप्रोच्ड बाय समबडी इटली में एक कपड़ा है, कहा जाता है कि वो कपड़ा शाउट ऑफ चूरिन कहा जाता है। मानते हैं कि इस कपड़े को क्राइस्ट ने अपने आखिरी दिनों में पहना था। लिपि वाज अप्रोच्ड विद रिक्वेस्ट टू डेट दैट शाउट। एक कपड़ा काफ़ी लंबा कपड़ा, 4.5 मीटर बड़ा और 3 मीटर चौड़ा है। उन्होंने कहा इसकी आप डेटिंग कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्राइस्ट के टाइम का है। तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे इतना बड़ा टुकड़ा दे दीजिए
वो कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इतना पवित्र ये कपड़ा है हमारा, वी कैन नॉट सेक्रीफाइस। बट इन 1980s एक टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताया था, AMS, एक्सीलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टेक्निक डेवलप हुई। उससे इतना बड़ा टुकड़ा अगर आपको कपड़े का मिल जाता है तो आप उसके रेडियो कार्बन एज निकाल सकते हैं। तो दुनिया की 5 लेबोरेटरीज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही लैब की रेडियो कार्बन की 4 या 5 इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग सैंपल दिए, उनकी डेटिंग की, और जब उन्होंने उसकी डेट निकाली तो वो 12th-13th सेंचुरी का कपड़ा निकला। तो अगर वो 12th-13th सेंचुरी, आप देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, कोई बता सकता है स्टूडेंट? दिस वाज क्लेम्ड टू बी अ पीस ऑफ क्लॉथ व्हिच बिलोंग्स टू द टाइम ऑफ क्राइस्ट एंड इट्स एज टर्न्स आउट टू बी 12th-13th सेंचुरी। तो ये कपड़ा जब क्राइस्ट के टाइम में था ही नहीं तो क्राइस्ट ने इसे कैसे ओढ़ा होगा? तो जो बहुत समय से एक मिथ लोगों में फैली हुई थी, वो इस तरह से रेडियो कार्बन डेटिंग की वजह से इस मिथ को ब्रेक डाउन किया गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आइसोटोप्स का है। आपको मालूम है हाथी जो है इनको हम लोग मार नहीं सकते, किल नहीं कर सकते, इसीलिए आइवरी जो है वो भी प्रोटेक्टेड है। आपको पता है हमारे देश में भी लॉज हैं, हम आइवरी अगर वो भी किसी के पास बहुत पुरानी, उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कहीं पर, इट्स इलीगल टू पॉसेस इट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। लेकिन इनकी पोचिंग होती है एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स आप ये भी जानते हैं कि एक जगह पर जाकर मरते हैं। जब एलिफेंट्स का अंतिम समय आता है तो दे गो टू अ सेम प्लेस, वहीं पे जाके उनकी डेथ होती है। सो देयर आर पीपल हु कीप ऑन आइदर समहाउ ड्रग कर देते हैं एलिफेंट्स को, आइवरी को सॉ करके बाहर निकाल देते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और उसको वो बेच देते हैं। तो ये जो इनकी पोचिंग होती थी, अफ्रीका आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हाथी जो है अफ्रीका में है। वहाँ पर कई क्रूगर का पार्क है, वहाँ पे नामीबिया है, वहाँ पे और दूसरे एरियाज हैं जहाँ पर हाथी मिलते हैं। एक बार एयरपोर्ट पर किसी को इन्होंने कस्टम अथॉरिटी से पकड़ा कि वो स्कैनिंग आइवर टस्क जो होता है, इसका हाथी दांत जो होता है, उसे निकाला था। तो उसने कहा कि साहब ये तो मेरी फैमिली में बहुत टाइम से है, और मेरी फैमिली तो पिछले सैकड़ों साल से वो इसी जगह पर रह रही है, एंड वी हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो उन्होंने दे वर नॉट कन्विंस्ड बिकॉज दैट मैन हैड सम ड्यूबियस बैकग्राउंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिस्ट से पूछा कि कैन यू डू समथिंग। तो फाइनली जो इसका सोल्यूशन निकला, आप जानते हैं इसका सोल्यूशन निकला आइसोटोप्स के बेस पे, एंड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्होंने इस आइवरी को, इस टस्क के एक टुकड़े को लिया, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रोंशियम 87 का मेजरमेंट किया। ओके, स्ट्रोंशियम 87 कैसे बनता है? स्ट्रोंशियम 87 बनता है रुबिडियम 87 के डीके से। तो इसका रिएक्शन मैंने आपको दिया है, 87 रुबिडियम डीकेज टू स्ट्रोंशियम 87 टाइम के साथ। तो अगर किसी रॉक के अंदर नेचुरल एबंडेंस में रुबिडियम 87 है, तो जितनी पुरानी रॉक होती जाएगी वो किसमें डीके होता जाएगा? स्ट्रोंशियम 87 में। इसका मतलब परसेंटेज जो वहाँ पर, अगर हम वहाँ का स्ट्रोंशियम निकाल दें तो उस जितनी पुरानी रॉक होगी उसमें स्ट्रोंशियम 87/86 का रेशियो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि 87 बनता जा रहा है। अब अगर अफ्रीका के किसी एक एरिया के रॉक जो है वो 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो उसका 87/86 रेशियो डिफरेंट होगा ऐसी रॉक से जो 3 बिलियन ईयर्स पुरानी है, राइट? तो अगर वो हाथी इस एरिया में है तो वो जिस वेजिटेशन को खाएगा, उस वेजिटेशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा स्ट्रोंशियम, वो उस रॉक से ही तो आया होगा। तो इसका मतलब उस वेजिटेशन के अंदर जो 87/86 स्ट्रोंशियम का रेशियो होगा, वो जो 3 बिलियन ईयर वाली पुरानी रॉक है उसमें जो 87/86 का रेशियो है, उस रेशियो से डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से उन्होंने नाइट्रोजन 15 का भी मेजरमेंट किया, और कई तरह के कॉम्बिनेशन लगा के उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो टस्क का सैंपल था, ये उस एरिया का था ही नहीं जहाँ का वो आदमी क्लेम कर रहा था। तो वो आदमी पकड़ा गया। बट सिंस देन ऑलमोस्ट 40 साल हो गए इस टेक्निक को इवॉल्व किए हुए, तब से आज तक इस टेक्निक का यूज़ होता है। और अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना हो तो आप इस रेशियो को देखिए, तो अलग अलग जगह के सैंपल्स इतने डिफरेंट हो सकते हैं। एक जगह का सैंपल यहाँ, दूसरी तरह का सैंपल यहाँ, दूसरी तरह की वेजिटेशन का यहाँ, और एक तरह का सैंपल कहीं और। तो अगर आप उनका आइसोटोपिक एनालिसिस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सैंपल एक्चुअली किस जगह का है।
क्योंकि हाथी के अंदर स्ट्रॉन्शियम कहाँ से आएगा? वेजिटेशन से, और वेजिटेशन में कहाँ से आएगा? रॉक से। तो जो रॉक का 87/86 है वही एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है। तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड ट्रेसर। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक डॉक्टर सिथोड़े थे, 5 मिनट्स। डॉक्टर सिथोड़े थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो सांची और मथुरा के टेम्पल्स हैं उनमें जो ग्रेव हैं, उत्कीर्ण हैं और कई जगह पर पेंटेड है शरीफा। शरीफा आप सब जानते हैं, शरीफा जो है वो बना हुआ है। लेकिन लोगों का क्लेम था कि शरीफा 16वीं सेंचुरी में जब पोर्चुगीज इंडिया में आए तब वो इसको लाए। और उन्होंने कहा कि ये जो 16वीं सेंचुरी से पुराने टेम्पल्स हमारे हैं, अगर इनमें बना हुआ है ये शरीफा, इसका मतलब उससे पहले था। बट नो फॉरेन साइंटिस्ट एवर एग्रीज टू दिस आइडिया। उसके बाद पंजाब में एक जगह है संघोल। उस संघोल में उन्होंने देखा कि उन्हें एक एक्सकवेशन में जो इसका छिलका होता है, द कोट ऑफ द शरीफा ऑफ द कस्टर्ड एप्पल, वो उनको मिला। मतलब पॉइंट हाउस 200 साल पुराना नहीं, वो क्या पता 200 साल पुराना नहीं। उसके बाद मिर्ज़ापुर में और जो सोनभद्र है उसमें, वहाँ पर उसका सीड मिला, उसका बीज मिला। तो जो आर्कियोबॉटनिस्ट है लेकिन आइडेंटिफाई किस चीज़ का है कि जहाँ तक तो तय था कि आज से काफ़ी टाइम पहले हमारे देश में शरीफा होता था, लेकिन कब होता था ये पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। उस चारकोल की जो शरीफे के सैंपल के साथ में मिला था और उस सीड की AMS से डेटिंग की गई फॉरेन में भेज के, और ये हमारे यहाँ DSIP में डेटिंग की गई और उससे पता चला कि ये जो शरीफा का सैंपल था ये 3000 साल के करीब पुराना था। और अगर ये 3000 साल पुराना था तो इसका मतलब पोर्चुगीज के इंडिया में आने से पहले ही हमारे देश में शरीफा है। इसी तरह के और कई तरह की चीज़ें दी गई हैं। और एक एप्लीकेशन जो अनएक्सपेक्टेड मेडिकल साइंस में भी आइसोटोप्स का, हम जब जानते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, बट दिस वाज वन थिंग कि जहाँ पर कैंसर के डिटेक्शन में इसका यूज हुआ। कैंसर क्या है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर किसी के शरीर में कहीं पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कैंसर है। और इसका मतलब ये भी है जो हमारा न्यूट्रिशन है शरीर का वो भी वहाँ पर ज़्यादा जा रहा होगा, कार्बन भी वहाँ पे ज़्यादा जा रहा होगा, ऑक्सीजन भी वहाँ पे ज़्यादा जा रहा होगा, क्योंकि तो वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, पेशेंट को कार्बन 11 का या ऑक्सीजन 11 का इंजेक्शन करा दिया सिरिंज से। थोड़ी देर बाद वो उनकी पूरे शरीर में फैल गया। अब उन्हें पता लगाना है कि उस जो सिरिंज उन्होंने लगाई उसमें उन्होंने क्योंकि रेडियोएक्टिव चीज़ डाल दी, तो जहाँ पर सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर ज़्यादा वो रेडियोएक्टिव मटेरियल पहुँच गया। जब वहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल पहुँच गया तो उसका बीटा डीके हुआ। तो ये दोनों बीटा डीके करते हैं, ऑक्सीजन 11 भी और कार्बन 11 भी। जब बीटा डीके हुआ तो बीटा पार्टिकल निकला। इस बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आप तो बाद में जाकर चेक कीजिएगा कि बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों में से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बीटा पार्टिकल जब उसमें से निकला और वो एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? वो रिएक्ट करेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा। जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? गामा रेज। तो आपको किस जगह के पास गामा रेज मिल रही है उससे आप लोकलाइज कर सकते हैं कि शरीर में किस जगह पर कैंसर है। इसके अंदर मशीन के अंदर पेट मशीन कहा जाता है इसको, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। उस मशीन के अंदर स्लाइड करते हैं, यहाँ से जब वो एनाइलेशन होता है इसका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो गामा रेज निकलती है और गामा रेज को डिटेक्ट कर दिया जाता है। ये एक पेंटिंग कोयले से बनाई हुई मिली थी और ये 30,000 साल पुरानी करीब पेंटिंग थी। इसका मतलब आज से 30,000 साल पहले इंसान रॉक्स पर ड्राइंग बनाया करता था। तो रॉक आर्ट कैन बी एज ओल्ड एज 30,000। इनफैक्ट जो लेटेस्ट एक कोई थोड़ा सा डाउटफुल वर्क आया था, उससे लगता है कि शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी रॉक आर्ट की प्रैक्टिस है। मैं यूपी का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ रॉक आर्ट की। किया तो हमने सोनभद्र में खास तौर पे बहुत सारे रॉक आर्ट साइट्स को देखा है जो आप एक यहाँ पर देख रही हैं। वहाँ की एक रॉक आर्ट साइट का यूरेनियम के मेथड से डेटिंग की गई, यूरेनियम सीरीज से की गई है डेटिंग। वो भी कई हज़ार साल पुरानी निकली है। बहुत रिलायबल डेट नहीं है, शायद वर्क अभी और करना होगा। पर देन रॉक आर्ट कितनी पुरानी है, आदिम मानव किस समय ड्राइंग कर सकता था, पेंटिंग कर सकता था, ये पता है रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। पहाड़ में सैकड़ों साल पुराने मकान हैं जो आज भी गिरे नहीं हैं।
अर्थक्वेक्स वहाँ पे इतने आते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं। ये कैसे बने हैं इसकी स्टडी वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने की थी, इसकी हमने रेडियो कार्बन डेटिंग की, तो पता चला ये जो मकान है ये करीब 900 साल पुराना है और इतने अर्थक्वेक आने के बाद भी ये नहीं गिरा है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, इसकी लोग स्टडी कर रहे हैं। रेडियो कार्बन इंडस्ट्री में है, अगर कहीं पर बहुत लंबा पाइप है उसमें कहीं पर लीकेज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है पता नहीं चलेगा, तो वो क्या करते थे कि ओरिजिन पे उन्होंने थोड़ा सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल दिया, फिर वो जहाँ से जाके बाहर निकलता है और अलग लेंथ को डिटेक्टर लेके जाते हैं जहाँ से रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब वहाँ पर लीकेज है, तो इंडस्ट्री के लिए भी इसका बहुत यूज है। हीलियम, इसको जो ये मीटोराइट आप देखिए कितने ह्यूज मीटोराइट्स होते हैं, इनकी जो स्टडी की जाती है, आइसोटोप्स की स्टडी में की जाती है, इनकी डेटिंग की जाती है। और ये जो एंशिएंट हमें कभी ऑर्गेनिक मटीरियल मिलता है तो वो ऑर्गेनिक है भी कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इनऑर्गेनिक कार्बन कहीं सीपेज के थ्रू, किसी ट्रैक के थ्रू वहाँ पर आकर जमा हो गया हो। इसका जब हम कार्बन 13 और कार्बन 12 रेशियो निकालते हैं तो जितना वो 2 होगा, चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनिक सोर्स का मटेरियल है, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। ये वो चट्टान है 84 जो मैं बता रहा था आपको, ये वाली जो है 84001, इस चट्टान के अंदर कहा गया कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया था, लेकिन बाद में गलत हुआ प्रूव ये क्लेम, और इसका भी एक कंफर्मेशन जो आया था वो कार्बन 13 में कार्बन 12 रेशियो से आया था। तो बहुत सारे ये C11 है, N13 है, ऑक्सीजन 15 है, ये सारे हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी पैट के केस में क्या है, ये उसका एक प्रोग्रेस है जो पैट की स्कैनिंग की जाती है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी रेड एरिया आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट में अगर कहें तो isotopes are atoms of the same element with different atomic weights. By now we all know this definition. They behave chemically in the same manner. इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब केमिकल प्रोसेसिंग चलते रहते हैं, कंपाउंड बनते रहते हैं, एक कंपाउंड से दूसरा बन जाता है, रिएक्शन होता है, कुछ और बन जाता है, लेकिन आइसोटोपिक रेशियो चेंज नहीं होता, वो उसी को ट्रेस कर रहे हैं। और these some radioactive isotopes are useful in dating and spacer. The stable isotope ratios can be useful in detecting of the history and origin of material, जैसे कार्बन 13 by कार्बन 12 से, जो ऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक सोर्स का है। पहले थर्मोमेट्री से की जा सकती है, टेम्परेचर कितना कह रहे था। एस्ट्रो साइंसेज में इसका उपयोग होता है, अर्थ प्लैनेटरी साइंस में इसका उपयोग होता है, आर्कियोलॉजी में होता है, इंडस्ट्री में होता है, हेल्थ साइंस में, यहाँ तक कि बायो साइंसेज में जब प्लांट की फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसमें रेडियोएक्टिव ट्रेसर डालते हैं और वो कहाँ पे कितना पहुँचता है उससे पता चलता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट कितना न्यूट्रिशन दे रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स का एप्लीकेशन है। So I think I will end it here. So thank you so much.